Hallelujah. Greetings to all of you in Jesus' precious and wonderful name. Hallelujah. I understand fully well that this is little late for people here in India, and it is also not according to the stipulated time that I mentioned that I will be online. Anyhow, this is how the Lord just impressed on my heart to share a few things with you. Hallelujah. I am going to talk about few fundamental deceptive teachings, doctrines that are very prominently taught in the churches, and people are just swallowing down that doctrine under their throat without really dissecting the word of the Lord. And being like Berean church, who really wanted to make sure whether what Paul the Apostle taught was truly from the inerrant word of the Lord or not. Hallelujah. आइए सबसे पहले प्रार्थना करें. Father, throw the light so that darkness is dispelled, Father. Break your word. By the breaking of your word, light busts in our hearts. Your word is lamp unto my feet and light unto my path. Your word that produces the light that is created by the olive oil, the oil of your presence. Father, in the name of Yahushua HaMashiach, let that glorious light shine. Let that light shine, Father. Let that light shine through Ruach HaKodesh. And let the engrafted word, which is your seed, which is your DNA and RNA, let it be planted deep within our recesses, right in the very center of our heart, Lord Jesus. We bless you. We give you praise, Lord. In the blessed name of Jesus of Nazareth. Amen. हालेलुया. मैं एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूँ. मैंने एक रिजॉल्व किया कि मैं बाइबल की शिक्षा का बहुत गहन अध्ययन करूँगा. और मुझे 30 इयर्स हो गए कि मैं परमेश्वर के वचन को सीखूं. फिर मेरे दिल में ये विचार आया कि मैं ओरिजिनल असली भाषा में प्रभु के वचन को सीखूं जितना मैं सीखने पाऊं. और प्रभु क्या कहते थे, यीशु मसीह ने क्या प्रीच किया, प्रेरित क्या सिखाते थे, प्रेरितों के बाद जो प्रेरितों के द्वारा चेले हुए, जिन्हें हम अर्ली चर्च फादर कहते हैं, उन्होंने क्या सिखाया. चर्च की हिस्ट्री का अध्ययन करूं और अलग अलग सेंचुरी में कौन कौन सी शिक्षा दी गई, कौन कौन सा अर्ली चर्च फादर क्या क्या शिक्षा देते थे, कौन कौन सी हेरेटिकल टीचिंग आई, झूठी शिक्षाएं आई, शैतानी शिक्षाएं आई, कैसे कैसे परमेश्वर के कलाम की शिक्षा को करप्ट करने की कोशिश की गई. तो ये मैंने रिजॉल्व किया कि मैं प्रभु के वचन को जानूं. तो आज मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि 19th सेंचुरी में कैसे कैसे परमेश्वर के कलाम को करप्ट किया गया. दुनिया में लूसीफेरियन कल्ट में, शैतानी दुनिया में, संसार में जहाँ साइकोलॉजी, मेटाफिजिकल साइंस सिखाई जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई जाती है, वहाँ पे आपको मिलेंगे लॉज ऑफ अट्रैक्शन, किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने के नियम. दे से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, and they teach your thoughts, your emotions,
your whole being is actually drawing something towards you. If you have negative orientation, this universe is sending negative waves towards you. They say that you can manipulate the reality around you by changing your thoughts. They teach you are divine, you are creator, you have the divine spark in you, you carry the light, the divine light, you are godlike, and eventually they say you are mini God. Faith teaching, फेथ की जो टीचिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई, बहुत सारे उसके टेंटिकल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है. बहुत सारे अमेरिका के फेमस प्रीचर जो अभी भी प्रीच कर रहे हैं, अगर आप उसकी बारीकी में गहराई में जाएंगे तो परमेश्वर के कलाम की कुछ आयतों को ट्विस्ट किया जा रहा है. जैसे कि मरकुस की इंजील में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब चेले आश्चर्यचकित हुए कि यीशु मसीह ने जिस फिग ट्री को श्राप दिया वो सूख गया, तो चेले बड़े आश्चर्यचकित हुए. तो यीशु मसीह चेलों से क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, I tell you, if you say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea. Mark 11:22 onward. If you speak to the mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, and you shall not doubt, but shall believe the thing that you say shall come to pass, you shall have whatever you say. तो यीशु मसीह के कहने का अभिप्राय कि अगर तू इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और अपने दिल में संदेह ना करे वरन विश्वास करे कि तेरे लिए ये ऑलरेडी हो गया, तो तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा. फिर दूसरी जगह यीशु मसीह कहते हैं, इफ़ यू हैव द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. फेथ इन द सन ऑफ गॉड नहीं कहते यीशु मसीह. यीशु मसीह कहते हैं, इफ़ यू हैव द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. अगर यीशु मसीह के जैसा ईमान तेरे दिल में हो, तो यीशु मसीह की कुछ शिक्षाओं को लेके उसको ब्लेंड किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ. आपने अक्सर सुना होगा कई फेथ की जो ट्विस्टेड टीचिंग है उसके ऊपर लोगों को ये उन्होंने सिखाया कि आप इस ब्रह्मांड को मैनिपुलेट कर सकते हो, इसकी डिमेंशन को मैनिपुलेट कर सकते हो. एंड देन दे ब्लेंडेड क्वांटम फिजिक्स. That quantum physics, the reality of the quantum physics is this, that this universe is waiting for your command. Whatever you say is going to be presented to you. तो परमेश्वर के कलाम के किसी भी आयाम को इंसान मैनिपुलेट कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, उसको भ्रष्ट कर सकता है. तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग है. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये सिखा रहा है, आपने इमेजिन करना है, प्रभु का नाम बोलना है, आपने इमेजिन करना है, आप मल्टी मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, आपने बोलना है बार बार. आपने अपने घर में जगह जगह पोस्टर चिपका देने हैं, पेस्ट कर देना लिख लिख के, ये गाड़ी आपको चाहिए, ऐसा बंगला आपको चाहिए, इतनी आपको वेल्थ चाहिए, इतने वर्ल्ड में आपने ट्रैवल करना है. तो उसको अंदर आपने मेडिटेट करना, उसको पुकारना है, उसको बुलाना है, उसको इमेजिन करना है, उसको बोलना है बार बार, ऐसे बिहेव करना जैसे वो आपको मिल गया. ये सिखाया प्रॉस्पेरिटी कल्ट वालों ने लोगों को. कुछ मिनिस्ट्री तो विजन बोर्ड के विषय में बताती हैं. विजन बोर्ड, दे टीच दे यू हैव टू हैव अ विजन बोर्ड. पुट अ विजन बोर्ड इन योर हाउस, राइट योर विजन ऑन दैट, एंड 2-3 dozen times look into the vision board और उसको बोलो बार बार और उसे अपनी ओर पुल करो, खींचो, यूनिवर्स को कमांड करो. जैसे एक डायलॉग है ना कि कायनात ने मिलाने की तुम्हें साजिश की है, फलाना डिमका, वो सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डायलॉग है. वो जर्रे जर्रे ने साजिश की है, मिलाने की, ये किया वो किया, ऐसी मूवी का एक डायलॉग ऐसा. दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. That is based upon law of attraction. This is taught in so many hyper charismatic ministries that are not really based in the really rooted word of God. तो आप क्या विजुअलाइज करोगे? कार, बंगला, गाड़ी, या आप परमेश्वर के कलाम पे मनन करोगे?
परमेश्वर यहोशू को मैंडेट देता है। जाशुआ चैप्टर 1 वर्स नंबर 8 क्या कहता है प्रभु? यहोशू के आगे बहुत डॉन्टिंग टास्क है। मोजेस इज नो मोर, मोजेस इज विद गॉड, जाशुआ इज ऑल बाय हिमसेल्फ एंड द लैंड वेयर गॉड हैज ब्रॉट देम, दिस लैंड इज फिल्ड विद द जायंट्स, there are Nephilims in the land, there is mingled seed, there are giants, huge stature creatures, they cannot be killed by human hands। उन्हें यहोवा ही मार सकता है, ऐसे दानवों से पृथ्वी भरी है। लेकिन यहोवा ने इनके पुरखे से कई सेंचुरीज पहले वादा किया है कि ये धरती तुम्हारी है। तो अब वो इसे कैसे हासिल कर सकते हैं यदि यहोवा उनकी ओर से युद्ध ना करे? तो प्रभु अपने एक जवान अगुए को क्या वचन देता है? यहोशू 1 अध्याय को पढ़िए, 5, 6, 7, 8 वचन। यहोशू को परमेश्वर कहता है, लेट दिस बुक ऑफ द लॉ नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर हार्ट, आउट ऑफ योर माइंड, आउट ऑफ योर साइट, मेडिटेट दाउ देयर इन डे एंड नाइट। यू डू नॉट नीड अ विजन बोर्ड, you do not need to speak to the universe, you do not need to do these witchcraft totke of law of attraction. All you need is meditate on the word of the Lord, dwell inside the word of God, let your heart, soul, mind rest on the Lord, meditate on the word। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? तो जो तू कुछ करेगा वो सफल होगा। हालेलुया। आप जहाँ देखें, जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं न्यू अवेकनिंग की, न्यू एनर्जी, ब्राइट लाइट किंडलिंग, न्यू इमर्जिंग रियलिटीज़, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेश एनर्जी फ्लोइंग, न्यू कॉन्शियसनेस, ग्रेट कॉन्शियसनेस अवेकनिंग, ये सब न्यू एज की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो चर्च के अंदर आज आपको बहुत मिलती हैं। बहुत मशहूर बड़ी बड़ी चर्चेज़ के पास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रीच करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जो प्रीच कर रहे हैं ना, नॉर्मन विंसेंट पेल वाली, जो बेस्ड नहीं है कलाम के ऊपर, बेस्ड है मेटाफिजिकल साइंस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। तो परखें कि आपको थाली में क्या परोसा जा रहा है। आप मार्केट में जाते हैं टमाटर ख़रीदने के लिए, 50, 60, 100 रुपये किलो चुन चुन के लेते हो आप, बट यू डोंट डिग द वर्ड ऑफ गॉड। अरे भाई, आप एक प्रॉमिस को लिख रहे हो, पढ़ो तो सही पूरा कॉन्टेक्स्ट, कलाम में लिखा क्या है कि कब वो प्रॉमिस तुम्हें मिलेगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों निकालते हो परमेश्वर के कलाम को? इट इज़ डेंजरस। दैट्स हाउ ऑल द कल्ट्स आर बॉर्न, बिकॉज स्क्रिप्चर्स वर टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ये न्यू एजर हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। न्यू एजर्स, लूसीफेरियंस, न्यू अवेकनिंग, डार्क अकल्टिक पीपल परमेश्वर के कलाम को यूज़ करते हैं और आपको टीच करते हैं योर बेस्ट लाइफ नाउ, योर बेस्ट इज येट टू कम। ये टर्मिनोलॉजीज बाइबल में नहीं है सारी। अच्छी तो बहुत लगते हैं जुमले ये जो अमेरिका में, अफ्रीका में पादरी लोग यूज़ करते हैं, बढ़िया बढ़िया जुमलाज होते हैं, लेकिन देखिए वो यहोवा के मुंह से निकले हैं या इंसान की कैच फ्रेजेस हैं। देयर आर सो मैनी कैच फ्रेजेस पीपल पुट इन देयर फेसबुक एंड एडवर्टाइज, नॉट रियली नोइंग वेदर याहवे हैज़ स्पोकन और दिस वर्ड हैज़ सम अदर रूट्स। अब देखिए, आपको विच क्राफ्ट के अंदर आपने सुना होगा एब्राकडाब्रा। तो हिंदी में बोलते आब्राकडाब्रा, एब्रक डाबरा। आपको मालूम डाबरा क्या होता है? दबार होता है परमेश्वर के मुंह से निकला कलाम। आब्राकडाब्रा का मतलब क्या है? ये हिब्रू फ्रेज है। इसका मतलब है आई स्पीक एंड आई क्रिएट, एज आई स्पीक आई क्रिएट। दिस इज गॉड्स प्रोगेटिव। परमेश्वर जो बोलता है वो पैदा हो जाता है। यदि आप परमेश्वर के संग उस डिमेंशन में चल रहे हैं, यदि आपका जीवन उस लेवल पे है प्रभु के साथ, अभिषेक में, परमेश्वर की पवित्रताई में, परमेश्वर के संग इंटिमेसी में,
इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चल रहे हो तो आबरा का डाबरा होगा आपके लिए, वरना आप कैच फ्रेजेस यूज कर रहे हो। इट्स अ फॉल्स टीचिंग। इट इज़ अ हिब्रू फ्रेज दो, बट इसको विच क्राफ्ट के लोग यूज करते हैं। दूसरी एक बड़ी फॉल्स टीचिंग चर्च के अंदर है, वननेस। वननेस, एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन। लेट अस क्या टीच करते हैं, एक और टीचिंग फॉल्स आ रही है, लिव इन द नाउ, डोंट वरी अबाउट योर past, don't care about future, live in the now. Of course that is very true, but see the subtlety and the deception of the catchphrases. मैं भी आपको दिखाता हूँ वो क्या सिखाते हैं। live in the now, live in harmony with creation, don't speak judgmental words. Oh, you don't have to be angry, show no grudge, show no hate, no judgment, all is spirit. After all, everybody is spirit being. Let's love all. Love is the greatest power. Doesn't Bible say that there is, love, faith and hope, but the greatest is love. So let's practice love. देखिए कैसे कलाम को ट्विस्ट किया जाता है। ये ऐसी टीचिंग है, it's trying to preach an utopian world. एक ऐसी दुनिया की कामना कर रहा हो, खूबसूरत दुनिया, सेरेनिटी है, हार्मनी है, पीस है, डिवाइन ट्रैंक्विलिटी है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, वी एम्ब्रेस एवरीबॉडी, वी लव एवरीबॉडी, ऑल रोड्स आर लीडिंग टू द सेम डेस्टिनेशन, every culture has some element of truth. We all have little tiny parts of a big puzzle. All the religions and all the ways, they have a little piece of the puzzle. You put all the pieces of the puzzle, you come up with a big picture. This is deceptive teaching of oneness. ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आ रही है ये टीचिंग। This is demonic utopian teaching, heretical teaching that is deceiving the church. This false oneness, false unity is actually not the unity of the Spirit. This unity is ecumenical move that Satan is initiating. The church is becoming overly seeker sensitive. The church wants to become all embracing church. Don't judge, don't speak against anyone, love everybody. You bring all the people in. That's the ecumenical move, the last move of Satan. The apostate church, the Vatican, the Luciferian, and all the occultic kingdoms are coming together. And you know what's going to happen? The remnant, the true church is going to be isolated. True church, saints of the Lord, will be branded as heretics and religious nuts. और फॉल्स चर्च इकट्ठा होगी, वो लव करेगी, प्यार करेगी, और ये सूडो लव है। ये वो सच्चा प्यार नहीं है परमेश्वर का, समझ रहे हैं आप। और बहुत सारी चर्च इसको अडॉप्ट कर रही हैं ऑलरेडी। they say that you have to make the word of God contemporary. You have to bring the word of God into the present relevance. Make the gospel culturally compatible. All these lofty terminologies are nothing but corrupting the word of God, distorting the scriptures. And so many churches in America, they have fallen prey to the deception of the enemy. So many mega church pastors are already duped by the forces of darkness. There is rampant deception in the pews, in the pulpit and as well as in the pews. तो भाइयों और बहनों, ये अंत के दिन हैं। समझिए इन झूठी शिक्षाओं को। कैसे आप मानेंगे? मान लीजिए आप अपने घर में राजमा बनाते हैं,
आपको राजमा की रेसिपी मालूम है कैसे राजमा बनेंगे, लेकिन कोई एक व्यक्ति आपको आके कहता है कि इसके अंदर आपको राजमा के अंदर आपको कफ़ीर डालना पड़ेगा, और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा क्या चेडर चीज़ ऐड कीजिए, या आप इसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट डाल लीजिए, कोका डाल लीजिए, दिस विल बी फैंटास्टिक। करेंगे आप ऐसा? क्योंकि आप जानते हो उसकी रेसिपी क्या है। यू नो द रेसिपी। दिस इज़ द रेसिपी ऑफ रिलीजियस एक्यूमेनिज्म। बहुत सारे मैं देखा सेवक वो शांति की बात करते हैं, विश्व शांति सम्मेलन, विश्व ढमकाना सम्मेलन। प्रभु यीशु मसीह तो भाइयों और बहनों कहते हैं लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें होंगी। प्रभु यीशु मसीह तो कहते हैं पृथ्वी पे शांति नहीं होगी, चारों ओर अंधेरा और अशांति होगी, चारों ओर अधर्म दुराचार का बोलबाला होगा। तीसरी जो फॉल्स टीचिंग जो आपको दिखाई देती है, दैट इज रिलीजियस प्लूरलिज्म। Religious pluralism is very sophisticated, very suave kind of term that the church has coined. Religious pluralism. It talks about, they use terms like we have enough space created by God where all can dwell together in love and harmony and brotherhood. Religious pluralism, all leads to God, all roads are good. This is what Luciferian Illuminati are pushing, the agenda to unite all the religions of the world. आपको मालूम, All People World Council of Churches and the Vatican, the Council of the Vatican and the Apostate Church, they are spearheading this movement. ये हो रहा है ऑलरेडी। अपोस्टेट चर्चेस की जो कॉन्फेडरेशन है इंटरनेशनल, वेटिकन के साथ मिलके, और वो लूसीफेरियन और इल्यूमिनाटी और सारी कल्टिक ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया के पॉलिटिकल जो अलग अलग फोरम्स हैं उनके साथ रैली करके इस्लाम को, दुनिया के साथ धर्मों को यूनाइट कर रहे हैं। वो बाइबल को भी लेते हैं, बाइबल बीच में रखते हैं, बाइबल में से टीच भी करते हैं। वो ये भी कहते हैं, दे से जीसस इज कमिंग, दे से जीसस illumines our mind, they say Jesus is ascended master. You know the teaching of the ascended masters, they teach there are masters who ascended in heaven, and they are glorified, they are illumined ones, and they are coming back. And they say Jesus is illuminated master, but then very quietly and politely they say he is not the only, there are many like him. और वो कहते हैं कि वो असेंडेड मास्टर है एंड ही इज़ कमिंग बैक। वो जो असेंडेड मास्टर है वो आपके माइंड को इल्यूमिन करता है, और वो बहुत सारे मास्टर्स हैं जो पृथ्वी पे आ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को एक्सक्लूसिव कहता है। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में ये क्लेम किया, He said, no one comes to the Father except through me. He said, I am the way, I am the truth, I am the life. He never said, I am one of the ways. He never said, I am one of the truths. Truth is not many. Truth has no plurality. Jesus said, I am the truth. Jesus said, I am the way. Jesus said, I am the life. Jesus did not say, come and I will show you the truth. He said, I am the truth. Jesus never said, come and I will allow you experience life. He said, I am the life. Jesus never said, come and I'll show you the path. He said, I am the way. Hallelujah. There is no syncretism in the teaching of Jesus. Syncretism is the agenda of this pluralistic religious council
They want to embrace all the religions of the world, and they want to welcome the beast who is coming. Beast is a person, beast is a system as well. Beast is Antichrist, and beast is a system of religious, political and economic new world that is coming. ये आ रहा है नई दुनिया. हालेलुया. मैंने एक दिन आपको बताया कि कैसे बाइबल की ट्रांसलेशंस करप्ट की गई. 1611 किंग जेम्स के बाद मैंने आपको 2 प्रोमिनेंट बंदों के नाम बताए थे जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया, और वो वैटिकन फंडेड लोग थे, रोमन कैथोलिक. और मैंने आपको बताया जो वर्सेटाइल रिसोर्स था वो था टेक्स्टस रिसेप्टस, लेकिन उन्होंने एलेक्जेंड्रियन टेक्स्ट को यूज़ किया जो कि वैटिकन का है, जहाँ से उन्होंने वल्गेट ट्रांसलेट की थी लैटिन में, जो रोमन कैथोलिक बाइबल है. और कैसे धीरे धीरे स्लोली बाइबल की ट्रांसलेशंस करप्ट होनी शुरू हुई. न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर, केजेवी के अंदर कितने स्क्रिप्चर्स के डिफरेंसेस हैं. लेकिन दुख की बात यह भाई और बहनों, मैं किसी से बात कर रहा था, वो पास्टर जी पढ़े लिखे हैं, विदेश में रहते हैं. उनका विचार था नहीं जी असी तो बस पंजाबी ठीक है जी, साडे लिए पंजाबी दे विचों असी कर लेना है. अरे भाई मैं उनको बता रहा हूँ कि पंजाबी की बाइबल में नियरली 24 वर्सेस है ही नहीं. 48 वर्सेस की सेंस चेंज कर दी गई है, और देयर आर अनदर मोर देन 20 वर्सेस दैट आर पार्टली एलिमिनेटेड. पंजाबी के वर्जन के अंदर वो सेंस ही नहीं है जो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर है, कई वर्सेस की बिल्कुल ही नहीं है. तो वो कह रहे नहीं जी पंजाबी ठीक है. मैंने बोला सही है भाई, फिर हम क्या बहस कर सकते हैं. तो कैसे कलाम को स्लोली करप्ट किया गया. मैंने आपको मॉर्निंग स्टार की कॉन्स्पिरेसी बताई थी कि वो लूसीफेरियन लोग जीसस को ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार कहते हैं, लूसीफर को सन ऑफ द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार कहते हैं. दोनों इक्वल हैं, वो कहते हैं दोनों लाइट के सोर्स हैं. लूसीफर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट, सो इज जीसस सोर्स ऑफ लाइट. तो देखिए कैसे कैसे वचन को करप्ट किया जा रहा है. कंटेक्चुअलाइजेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि कलाम को कॉन्टेक्स्ट में कैसे लाना है, कैसे उसको कॉन्टेक्स्ट में लाएं. तो कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए उसकी पूरी स्पिरिट को चेंज कर देते हैं, ताकि जिन लोगों के बीच में कलाम दिया जा रहा उनके कल्चर के संग कंपैटिबल हो, उनको कल्चरली कलाम हर्ट ना कर दे कहीं. तो कलाम को चेंज करो, कॉन्टेक्स्ट में लेकर आओ, मेक द गॉस्पल रेलेवेंट. कुछ लोगों का 19th सेंचुरी में ये सोच थी कलाम को रेलेवेंट करें. आवर यूथ इज़ फॉलिंग अपार्ट, they are not coming into the churches, the world is making, this Bible is making no sense to them. This version 1611 King James version makes no sense to the youth, so let's revise it. तो कितनी रिविजन्स हुई वर्ड ऑफ गॉड की, कितना कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, रेलेवेंट करने के लिए. अरे भाई परमेश्वर का कलाम को आप चेंज नहीं करते, परमेश्वर का कलाम आपको चेंज करता है. हालेलुया. कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की कितनी फाइन लाइन है, किस हद तक किया जाए और किस हद तक ना किया जाए. कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए और रेलेवेंट करने के लिए, कल्चरली कंपैटिबल करने के लिए, कलाम को अपीलिंग करने के लिए यूथ को, कलाम को अपने टाइम्स की रोशनी में इंटरप्रेट करने के लिए कितना वाटर डाउन कर दिया गॉस्पल को भाई, कितना वाटर डाउन कर दिया कलाम को. फिर एक और फॉल्स टीचिंग है जो इस लूसीफेरियन वर्ल्ड की, इस कल्टिक दुनिया की, फ्री मेसनरी लोगों की टीचिंग है, इनका डॉगमा है एक्चुअली. ये है यूनिवर्सलिज्म. यूनिवर्सलिज्म क्या है? यूनिवर्सलिज्म टीचेस ऑल विल बी सेव्ड, ऑल आर इटर्नल. Man is the express image of God. Man is created by eternal God. He cannot send man to hell. He is a love God.
He will not send anybody. Eventually, after punishing and purging people, all are gonna end up in heaven somehow or the other. Heaven is a spiritual place. You know, the wrath of God, hell, judgment, doom and gloom. Let's not talk about these things. They are very offensive. People don't want to talk these things. They are so graphic, you know, they scare people. Wrath, judgment, hell, and brimstone and fire, gloom and doom. Don't talk these things. Talk good things. Talk the love of Jesus. Don't offend people. Let them come to the church. Let the church attendance grow. Let's have a big mega church and let's entertain people. Let's entertain them. Let church be like a big entertaining club. ये यूनिवर्सलिज्म जो चर्च के अंदर आया है वो सर्टनली सिखाते हैं डोंट टेल पीपल देयर इज हेल, टेल पीपल देयर इज नो जजमेंट, टेल गॉड इज लव. मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में जो यीशु मसीह ने शिक्षा दी मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में, यीशु मसीह ने मोर देन 30 टाइम्स हेल का जिक्र किया है. यीशु मसीह ने हेवन से ज़्यादा हेल का जिक्र किया अपने कलाम में. यीशु मसीह ने कहा अनलेस यू रिपेंट यू विल ऑल्सो पैरिश लाइक वाइज. यीशु मसीह सच्चे कलाम का प्रचार करने आया. यूनिवर्सलिज्म सिखाता है, यूनिवर्सलिज्म टीचेज यू आर ऑलरेडी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, यू आर ऑलरेडी क्रिएटेड बाय हिम, therefore you are already sons and daughters of God. These morons do not understand. If we were already sons and daughters of God, why will God adopt us? Why will God send the spirit of sonship? Why will God decree spirit of adoption? Why is there adoption if we are already sons and daughters of God? पांचवी जो हेरेटिकल टीचिंग है चर्च के अंदर जिसे लोग डिसर्न नहीं कर पाते वो है मिस्टिसिज्म. Now mysticism is a real subjective matter. It is about hidden meaning, hidden knowledge, hidden super spiritual experiences, deep profound revelations, and they are just floating in the air. They are not latched unto the word of God. कोई आपका रेवलेशन, कोई आपकी नॉलेज, कोई आपका रूहानी तजर्बा अगर परमेश्वर के कलाम में उसकी रूट्स नहीं है तो वो सिर्फ हाइपर कैरिस्मेटिकिज्म है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. आपका हर एक तजर्बा, आपको दी गई हर एक गहरी बुद्धि, आपको दिए गए गहरे दर्शन, आपको बताए गए गहरे भेद परमेश्वर के कलाम के अंदर रूटेड होने चाहिए. लेकिन मिस्टिसिज्म ऐसा नहीं है. मिस्टिसिज्म गिव्स यू विंग and you fly aimlessly on the horizons. Mystic Christianity is actually New Age. New Agers are creeping into the church. They are bringing this, new mysticism. And of course, make sure that mysticism also has roots in Kabbalah. Kabbalah is a dark Jewish mysticism. It's a dark occult. You can Google search about a man called Richard Rohr. Richard Rohr, nobody knew about him. अभी कुछ समय पहले स्टीवन फर्टिक एक अमेरिका के फेमस प्रीचर हैं. आप में से कई लोग हैं फ़ैन इन लोगों के. मैं देखता हूँ आपके पोस्ट. आपको मालूम नहीं वो क्या टीच करते हैं, क्या उनकी शिक्षा, यू डोंट नो. आपको उनके कैची फ्रेज और उनका जो बड़ा एग्जॉर्बिटेंट स्टाइल है ना प्रीच करने का, जो ड्रेस करने का स्टाइल है, उनकी चर्च की जो वर्शिप है, जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पे जो उसकी फर्निशिंग है और जो उनकी भीड़ है 30,000 की, दैट अपील्स यू. आप गहराई में नहीं जाते कि कलाम क्या कहता है. रिचर्ड रोर इज़ अ हेरेटिक. ही इज़ अ मिस्टिक हेरेटिक. ही इज़ अ लूसीफेरियन. ही इज़ एन इल्यूमिनाटी. बट दिस गाय स्टीवन फर्टिक ड्रिंक्स हिज वाटर. He drinks from his fountain. He quotes him also. You can check it. अमेरिका में ग्रेव सोकिंग है. बैथल चर्च है बहुत बड़ा एक. some of you must have heard how it fell down. बैथल म्यूज़िक कितना ज़बरदस्त था. ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिल सॉन्ग म्यूज़िक,
वो म्यूज़िक एक कल्ट बन जाता है। उस म्यूज़िक की उस वो जो वर्शिप करते हैं ना, उस वर्शिप की लोग वर्शिप कर रहे हैं। यहोवा की वर्शिप नहीं कर रहे, यहूशा हमश्याक जीसस की वर्शिप नहीं कर रहे, उस वर्शिप कल्ट की वर्शिप लोग करते हैं। और कितना डेमोनिक एक्टिविटीज़ हैं उन लोगों के अंदर, उनकी शिक्षा के अंदर। परमेश्वर ने मुझे बहुत साल पहले दिखा दी ये सब बातें जो अब प्रकट हो रही हैं। वो लोग इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। दे टीच क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर द सेम थिंग। ब्रायन हूस्टन जो उनका पास्टर है, और वो कहते हैं लिस्बियन, गे एंड हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, डोंट जज देम, दे आर ऑल गोइंग टू गॉड। ऐसी टीचिंग है भाई और बहनों। अमेरिका के एक बहुत फेमस प्रीचर की टीचिंग है, गॉड्स ओपिनियन ऑन होमोसेक्सुअल, लेस्बियन एंड गे इज इवॉल्विंग। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपको नहीं मालूम, ये चर्चेस के अंदर ग्रेव सोकिंग है। वहाँ कैलिफोर्निया में जितने पुराने पुराने संत मर गए, उन लोगों की कब्रों पे जाके लोग लेटते हैं, उसे ग्रेव सोकिंग कहते हैं, कि उनकी अनॉइंटिंग आ जाए, कैथरीन खुलमन की अनॉइंटिंग आ जाए, और जॉन जी लेक की अनॉइंटिंग आ जाए, जितने पुराने पुराने सेंट चले गए उनकी अनॉइंटिंग आ जाए। इट्स कॉल्ड ग्रेव सोकिंग। They talk about gold dust. I saw gold dust with my own eyes in 2000 के पास। मैंने वर्जीनिया में, आई सॉ इन वर्जीनिया अ वुमन जिसके ऊपर गोल्ड गिर रहा था। वो बहुत हम्बल औरत थी, ब्राज़ीलियन औरत, उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी। लेकिन कितने लोग फेक करते हैं गोल्ड डस्ट को। कोई गोल्ड डस्ट नहीं है उनके पास, ये कोई इतनी ज़बरदस्त एनवाइंटिंग नहीं उनके पास कि गोल्ड डस्ट। कहते देखो देखो अपने हाथों को गोल्ड आ रहा है, देखो देखो ऑयल आ रहा है। ये वही है भाई और बहनों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट्स नॉट द होलसम टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और बहुत बड़ी बड़ी चर्चेस के अंदर लोग उन्हें बुला के मीटिंग करवाते हैं, क्योंकि भीड़ अट्रैक्ट होती है। फॉल्स प्रॉफिट को क्यों बुलाया जाता है इंडिया में, क्यों बड़ी बड़ी चर्चेस बुलाती हैं? क्योंकि फॉल्स प्रॉफिट आके लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे गिरवाएंगे। जितने वो लोगों के बैंक अकाउंट में गिरवाएंगे नहीं, उससे कई ज़्यादा पास्टर निकलवाएंगे उनको प्लैटिनम, डायमंड एंड सिल्वर पार्टनर बना के। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। दीज ऑल आर हेरेटिकल फॉल्स टीचिंग्स, ग्रेव सोकिंग, एंड दे चैनल द स्पिरिट्स। दे टीच channeling the spirits. They talk pseudo gold dust. They talk about angel wings. They say, oh, angels wings and angels feathers are falling here, but there is no angel actually. All for the lust of power and pseudo prosperity. तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, ये आप सवालों करते जाते हो, ये जानते हुए नहीं कि ये सच्चा कलाम है या नहीं है। न्यू एज की डिसेप्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोगों को सिखाए जाते हैं फेथ के अम्ब्रेला के नीचे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टीचिंग ऑफ वननेस, यूनिवर्सल वननेस। फिर सिखाया जाता है रिलीजियस प्लूरलिज्म, फिर सिखाया जाता है यूनिवर्सलिज्म, मिस्टिसिज्म। दिस ऑल इज इन द एंड टाइम चर्च। ये लॉडीसिया की कलीसिया है भाई और बहनों, जिसमें आप और मैं हैं। चर्च ऑफ लाउडीसिया, जिसको प्रभु कहता है तू दरिद्र है, अभागा है, अंधा है और नंगा है। दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज। तू दरिद्र है, अभागा है, अंधा है और नंगा है, मेरे पास आ, मैं तुझे पहनने के लिए श्वेत वस्त्र दूंगा, मुझसे ले, मैं तुझे आंखों में लगाने के लिए अंजन दूंगा जिससे तुझे दिख सके। मुझसे ले, प्रभु कहता है कि मैं तुझे खालिस सोना दूंगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के सच्चे कलाम को खोजें ताकि आप परखने पाएं कि कौन सा झरना बह रहा है, यहोवा का स्रोत है या अंधकार का स्रोत है। हालेलुया। कल सुबह आपसे भेंट होगी, कल सुबह हम इंटरसेशन करेंगे और आप अपनी प्रार्थनाएं भेजिएगा। कल हम सब मिलके इंटरसीड करेंगे 10 o'clock इन द मॉर्निंग।
सॉरी 10 नहीं, थोड़ा पहले करना पड़ेगा। मैं आपको सुबह इंटीमेट करूँगा। कल मैंने एक जगह ट्रैवल भी करना है, लेकिन कल हम मॉर्निंग में इंटरसेशन करेंगे। विल प्रे फॉर वन अनदर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आई विल सी यू टुमारो। जय मसीह की।